Listen now. Tell me your roll call. Ashna, Arnav, Avishka, Bhumi Doshi, Bhaumik, Darshi आई, धीर भानुशाली, ध्रुमिल शाह, ध्रुवी शाह, ध्वनि गोसालिया, हर्ष मेहता, हर्ष पाटिल, वो सवेरे किया, हर्ष पाटिल, वीर गांधी, एक जोशी, हितांश गिलानी, सिद्धांत कलश छेड़ा, कार्तिक, रीना कुशाग्र आया, मीरा मेहता, मेघ दोशी, मीत, नेमिल, निशी, प्रहलाद, ऋषि आया, रिया, साक्षी, श्रेयांक शेट्टी, इधर श्रेयांक शेट्टी नहीं आया ना, श्रेयांक, तनय, विश्वा, वेदिका, वेदिका is here. होमवर्क सम ले लो सबसे पहले, टेक आउट द होमवर्क सम, चेक द होमवर्क, और I have done the homework 2 sums, it's 200 rupees. चलो check the homework sum. Amol draws a bill on Atul for 24,000 on 6th October 2019. So सीधा you have to go for acceptance entry, that is BR to Atul. बराबर है 24,000 on 6th October. Then the same bill was sent to BFC, so bank for collection to BR, that is again 24,000. Bank for collection to BR 24,000, 6th October. Then before the 20th October, sorry, this BFC to BR is on 20th October. Before the due date, Atul finds himself unable to make the payment and request to renew the bill. So bill is getting dishonored. So BFC ka bill is getting dishonored. So entry would be Atul to BFC. That will be 24,000. और फिर वहां पे क्या दिया है कि on the condition that he should pay 10,000 in cash along with interest. So interest is coming with cash. Interest is coming with cash. So स्वैप करना पड़ेगा, बराबर है. तो पहले एंट्री आएगा इंटरेस्ट ड्यू का, दैट विल बी अतुल टू इंटरेस्ट, और फिर अतुल टू इंटरेस्ट वुड बी 800, और फिर आएगा कैश टू अतुल. कैश टू अतुल में आएगा आपका 10,000 plus 800, that will be 10,800. Is it clear? 10,000 plus 800, 10,800, and accepted a new bill for the balance. So what will be the balance amount out of 24,000? 10,000 rupees you got immediately. So 14,000 is balance. Interest has been also paid. So 14,000 is the balance amount. So आपका आएगा BR to Atul. BR to Atul 14,000 rupees. Sorted. Atul retired the bill on 12th of January 2020 by paying 13,500. तो आपका एंट्री आएगा कैश रिबेट टू BR, और डेट आएगी 12 Jan. बिल अमाउंट था 14,000, 14 की जगह 13,500 मिला, तो 500 रुपीज नहीं, 12th of Jan दिया हुआ है, आपने छापा है इसके लिए 12th मार्च. ऑनर डेट जो है वो 12th मार्च हो सकती है, लेकिन ऑनर कहाँ हुआ है, ड्यू डेट से पहले हुआ है. तो रिटायरमेंट विल हैपन ऑन 12th of January. So you have copied there in 12th March. Acceptance is on 9 Jan. Acceptance is on 9 Jan. Yes. Renewal का चारों एंट्रीज 9 Jan को होगा. तो वो 9 Jan से 2 महीने में कभी भी रिटायर कर सकता है बिल्कुल. उसने 12 January को रिटायर किया हुआ.
अरे पीरियड दिया ना 3 months, 6 अक्टूबर से 3 महीना प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। 6 अक्टूबर को एक्सेप्ट हुआ है तो 3 महीने बाद ड्यू डेट आएगा ना, समझा? 6 अक्टूबर को एक्सेप्ट हुआ है तो नवंबर दिसंबर जनवरी प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। 9th जैन को रिन्यूअल होगा, 9th जैन को रिन्यूअल का चारों एंट्रीज आएगा। फिर 9 जैन के बाद रिटायर कब हो रहा है? 12 जैन, विद इन 3 days वो जाके पैसा दे रहा है। सो कैश रिबेट टू बीआर, कैश रिबेट टू बीआर, दैट विल बी 13,500, 500 and 14,000. Got it? That was your sum number 5 and there was one more sum number 5 on page 306. इसमें लोचा पता चलेगा कॉपी किया है कि नहीं, सोल्यूशन भी नहीं। Cash to interest to us. Now, sum number 6, page 306 पे था। Sum number 5, sorry. Siddhant sold goods to Sudhir 43,800. So पहले आएगा Sudhir to sales. We are Siddhant. We are writing in the books of Siddhant. Sudhir to sales 43,800 on 18th March. Then Siddhant draws a bill on Sudhir for 43,800 for 3 months. So BR to Sudhir will be 43,800. The bill was duly accepted. Then Siddhant discounted the same at 8% per annum. So आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। 43,800 पे you have to take it at the rate of 8% for 3 months. 876 is discount. तो बैंक में आएगा 4 to 924, बैंक में आएगा 4 to 924, डिस्काउंट में आएगा 876 टू BR 43,800। ये मिला बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR। ओके, देन बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR हो गया। उसके बाद ये बिल हो रहा है रिन्यू, तो रिन्यूअल की डेट होगी 18 मार्च से 3 महीना प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, दैट विल 21 जून। 21 जून को रिन्यूअल हो रहा है। उसमें फर्स्ट स्टेप इज ओल्ड बिल इज कैंसिल, दैट विल Sudhir टू बैंक, Sudhir टू बैंक 43,800, Sudhir टू बैंक 43,800। वापस वहां पे पढ़ो क्या दिया है, टू एक्सेप्ट 13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश। So again, interest is coming with the part payment. Interest is coming with the part payment. So you have to swap or you have to write in the same order. Swap करना पड़ेगा आपको। Yes. तो swap करोगे तो पहले interest ड्यू की एंट्री आएगी। उसका मीनिंग क्या है? एक्सेप्ट 13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन, इंटरेस्ट इन कैश और रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट पे तो कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट, थोड़ी 13,800 का होता है कभी भी। रॉन्ग, पहले इंटरेस्ट फिर पार्ट पे। क्यों ऐसे समझा? क्योंकि इंटरेस्ट इज कमिंग इन कैश, इंटरेस्ट इज कमिंग इन कैश, नॉट विद द न्यू बिल। तो पहले ड्यू फिर रिसीव। सो पहले आएगा Sudhir to interest आएगा, that will be 600 rupees. Sudhir to interest would be 600 rupees. Got it? Sudhir to interest would be 600 rupees and then new bill would be accepted. पार्ट पेमेंट का एंट्री आएगा कैश टू Sudhir। कैश टू Sudhir में आएगा आपका 13,800 प्लस 600, that will be 14,400. Once again, पहले डिसऑनर हुआ, that is Sudhir to बैंक 43,800। फिर इंटरेस्ट ड्यू, Sudhir टू इंटरेस्ट 600 कहां से आया आपको इंटरेस्ट? 43,800 में से 13,000 तो दे दिया है, तो बैलेंस 30,000 बचा ना। तो 30,000 पे 12% फॉर 2 months, 30,000 पे 12% फॉर 2 months, दैट बी 600। तो Sudhir टू इंटरेस्ट वुड बी 600 एंड देन कैश टू Sudhir वुड बी 14,400, कैश टू Sudhir वुड बी 14,400। इज इट क्लियर? और फिर आएगा न्यू बिल। अभी न्यू बिल कितने का आएगा? देखो 43,800 में से 13,800 तो दे दिया, इंटरेस्ट भी उसने कैश में दे दिया, तो बचा कितना? 30,000। BR to Sudhir will be 30,000। All these 4 entries will happen on 21st of June. 21st of June. Is it clear? Yes. उसके बाद आएगा आपका न्यू बिल। क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है बिफोर द ड्यू डेट। अभी यहां पर ड्यू डेट मत लिख लेना,
बिफोर द ड्यू डेट सुधीर रिटायर द विल, यहां पर ड्यू डेट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? आप इमेजिन, आप रिटायर कर रहे हो तो रिबेट दे रहे हो, एंट्री होगी कैश रिबेट टू बीआर, कैश में 29,700, रिबेट 300 टू बीआर 30,000। अगर आप ड्यू डेट पे पे कर रहे हो तो रिबेट क्यों दोगे? इसके लिए ऑनर एंड डिसऑनर, ऑनर एंड डिसऑनर कैन बी अज्यूम्ड ऑन द ड्यू डेट। हाँ, उसमें रिन्यूअल था ना, तो डिसऑनर था उसका। रिबेट आवश्य, कैश रिबेट टू बीआर आवश्य, बट डेट you cannot take it as a due date, you have to take it as a dash। डेट के बाजू में डैश ले, डेट के जगह डैश ले। इधर क्यों अज्यूम नहीं कर सकते आप ड्यू डेट? बिकॉज अगर आप ड्यू डेट अज्यूम करते हो तो रिबेट आएगा ही नहीं। उसने रिटायर किया, तो रिटायरमेंट कैन नेवर हैपन ऑन द ड्यू डेट। आप ड्यू डेट किसके लिए अज्यूम कर सकते हो? ऑनर या डिसऑनर। अब वो डिसऑनर रिन्यूअल वाला डिसऑनर हो, इंसॉल्वेंसी वाला डिसऑनर हो कि नॉर्मल डिसऑनर, उसके लिए आप ड्यू डेट ले सकते हो। लेकिन रिटायरमेंट के लिए नेवर टेक द ड्यू डेट, बिकॉज रिटायरमेंट विल ऑलवेज हैपन सम डेज बिफोर द ड्यू डेट, ओनली देन यू विल अलाउ रिबेट। ड्यू डेट के दिन तो ऑनर हो गया था, रिबेट देने का मतलब बनता ही नहीं, समझा? उधर डेट में डैश डाल दो, कट द डेट एंड राइट डैश, कट द डेट एंड राइट डैश, सब गलत है। क्या किया है? ग्रुप में डाला था, क्लास में 2 बार बोला था, वीडियो में भी था, 2 बार का केयरलेसनेस है तेरा। ये आज का होमवर्क है, मेरे को मंडे को फिक्स सम करके दिखाना। ये नहीं अभी मंडे को चेक करो, मंडे को करवाने वाला हूँ, मंडे को फिक्स सम लेके। चलो होमवर्क सम, एनी डाउट एनीवन? लास्ट डेट क्यों नहीं लिख सकते समझा? लास्ट में डैश डाल बिफोर द ड्यू डेट, सो पुट अ डैश। बाकी अमाउंट का कैलकुलेशन आया सबको? ये प्रॉब्लम एनीवन? डेट ने किया आपका 200 रुपये। बी रेगुलर नाउ, अननेसेसरी रीजन के लिए एब्सेंट वैब्सेंट मत रहो, ओके? फाइन पड़ेगा फोकट का। एंड स्टार्ट करते हैं आज। ले लो सम नंबर 6 ले लो सब लोग। मुझे बताओ किसके बुक में लिखना है सम नंबर 6? मनोज यार, मनोज। हाँ, होमवर्क सम में भी वो हाफ पेज छोटा सा है, होमवर्क सम में लेक्चर के लिए नहीं, उसमें नहीं, होमवर्क वाले में नहीं छोड़ना, चलेगा? होमवर्क वाले में नहीं छोड़ना है, क्लास वाले सब में हाफ द साइड यू हैव टू। चलो ड्रॉ फास्ट। लेजर as soon as you finish the VR part, mostly on Monday or Tuesday, सब सम्स का लेजर साथ में करने वाले। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। तो फर्स्ट में जो संडे आ रहा है उस दिन पे आपका टेस्ट आएगा। क्या हो गया? हाँ, ये फर्स्ट मई को आपका टेस्ट होगा मोस्टली ऑफ दिस टॉपिक, दिस ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? संडे आ रहा है, एसपीडीडी स्कूल में होगा टेस्ट, एज लाइक यू यूज्ड टू राइट इन 11th स्टैंडर्ड, ओके? संडे मॉर्निंग क्लैश नहीं होगा, गुड टेस्ट, 1-2 दिन का गैप आ जाएगा। रोहन सर का अगर आ ही रहा है तो गेट है क्या? हाँ, नेक्स्ट नहीं, मेरा नेक्स्ट वीक हो गया तो पक्का नेक्स्ट संडे में, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे तक आपको कंफर्म बता दूंगा, ट्यूसडे वेडनेसडे तक मैच। संडे को टेस्ट है कि नहीं? मोस्ट प्रोबेबली तो होगा, पढ़ाई चालू कर दो। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6, मनोज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू नरेन। यस, धीर भानुशाली, टेल मी द फर्स्ट थिंग। Naren to sales. Naren account debit to sales account. कितना
कितना आएगा? 10,000. Naren to sales, that is 10,000, being goods sold to Naren. कौन सी डेट को हुआ? इट इज आई थिंक 6 जून 20, 6/6/20, 6/6/20, right? We sold the goods. Bhumidoshi, tell me the next part. What is happening? The Naren accepted two bills of 4,000 and 6,000 for 3 months and 4 months. What is the entry? But there are two bills. So how to tackle it? BR1, BR2 to what? Naren. Write down BR1 account debit, BR2 account debit to Naren account. All of you got this? Yes. 4,000 का पहला बिल है, 6,000 का सेकेंड बिल है, टोटल बिल वैल्यू है, टोटल सेटलमेंट वैल्यू है 10,000. Being BR1, BR2 accepted for 3 months and 4 months respectively. BR1 and BR2 accepted for 3 months and 4 months respectively. Is it clear? Yes. Got it? So दो बिल का स्टोरी है. BR1, BR2 नाम दे दिया. वेदिका. First bill was endorsed to Ritesh. What is the endorsement entry of a bill? Ritesh account to BR. Very good. Ritesh account debit to BR1 account. Is that right? Ritesh account debit to BR1. BR1 I think था 4,000. Ritesh to BR1 4,000 being BR1 endorsed to Ritesh. Who is Ritesh? Credit. इसको पैसा देना था, इसके लिए हमने बिल देके सेटल करेंगे. क्या होगा डेट इसका? सेम डेट 6/6/20. 6/6/20. The first bill was endorsed to Ritesh. First bill was endorsed to Ritesh. Ritesh to BR1. Done? Yes. Dhwani, tell me the second bill का क्या हो रहा है? उसका एंट्री देखो. Second bill was discounted at 12% per annum on 9th June. बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR. आता है सबको ये? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR2 account. Correct? Bank discounting charges to BR2, that is the dealing entry for second bill. That is the dealing entry for second bill. Correct? So bank discounting charges to BR2, that is the dealing entry for second bill. Let's calculate the discount. When are we discounting it? By the way, we are discounting it on 9th June. Okay, 9th June. Now, does it matter if we discount it on 6th June or 9th June? No. 3 days does not make any difference, right? So, discounting charges. कैसे करना आपको? PNR वाला फॉर्मूला है. बिल अमाउंट कितना था? 6,000. Second bill was of 6,000. Pay, what is the rate? 12%. For 4 months. The second bill was of 4 months. Correct? So, 240. बराबर ना? 0 card, 12 card, 6 4 24. So 240 rupees is your discount, correct? Hello. So how much will you get in hand? If you give the bill of 6,000 to the bank, you will get 5,760. Immediately you will get 5,760, right? So that is what you are getting for discounting, being BR2 discounted. Being BR2 discounted. So, story is clear till this point. What has happened? There were two bills. First bill was honored and the second bill was discounted. Correct? First bill was honored and the second bill was discounted. First bill was endorsed. क्या बोला? Honored. First bill was endorsed and the second bill was discounted. First endorsed, second discounted.
Okay, now the result of the bill. Neville, what is happening to the first bill? Renew. The dono bills, both the bills were renewed for 2 months by paying half in cash and accepting a new bill for the balance at interest 8% per annum. दोनों बिल्स रिन्यू हो रहा है, तो दोनों डिसऑनर हो रहा है. बट मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिन्यूअल हो रहा है दोनों बिल का, ठीक है. रीड इट एंड टेल मी, रीड द स्टेटमेंट एंड टेल मी, रिन्यूअल में इज द इंटरेस्ट कमिंग विद कैश और विद न्यू बिल? पक्का? सबको समझा? इंटरेस्ट इज नॉट कमिंग विद कैश, इंटरेस्ट इज कमिंग विद न्यू बिल. बैलेंस पे कैलकुलेट किया और इंटरेस्ट इज कमिंग विद न्यू बिल. तो स्वैप करना है कि नहीं करना? स्वैप नहीं करना है, सेम ऑर्डर में जाना है. दैट इज वन थिंग फॉर श्योर. बराबर. अब दोनों बिल रिन्यू हो रहे हैं, तो दोनों बिल की एंट्रीज को कंबाइन कर सकते हो क्या? करना है कंबाइन की नहीं करना? देखो, एंडोर्स डिस्काउंट से फर्क नहीं पड़ता है. देखो, इसका डिसऑनर एंट्री क्या है? एक्सेप्टेड टू एंडोर्सिंग. इसका क्या? एक्सेप्टेड टू बैंक. आप लोग कर सकते हो एक्सेप्टेड टू एंडोर्सिंग टू बैंक. बट डेट, दोनों का रिन्यूअल डेट सेम है कि अलग है? देखो, फर्स्ट बिल वॉज फॉर 3 months एंड द सेकेंड बिल वॉज फॉर 4 months. डिसऑनर कब होता है? On the due date. So what is the due date of first bill? 6 is 3 months plus 3 days of grace. That will be 9. And what will be the due date of second bill? 9/10. 9th of September and 9th of October. Dishonor honor will happen on which day? Due date. So due date इसका अलग है, इसका अलग है. समझा? तो combine नहीं कर सकते. Can you combine? You can't. So what do we need to do? 4 entries of first bill renewal, then 4 entries of second bill renewal. So let's start with the 4 entries of first bill renewal. That will happen on which date? 9. Where was the first bill? The first bill was with Ritesh, endorsed bill, right? Krina, tell me first bill dishonored, endorsed BR dishonored. Ritesh account debit Naren to Ritesh, accepted to endorse. Naren account debit to Ritesh account, accepted to endorse. Naren to Ritesh, ठीक है? Naren to Ritesh कितना आएगा? 4,000. No noting charges, right? This is being BR1 dishonored. Being BR1 dishonored. Why aren't we clubbing? Are you understanding? Same date also. Why we did not club? Because